سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیحہ زبیر اور میں ہوں ذیشان ملک۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانے، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ اسلام آباد میں آج بلدیاتی انتخابات ہوں گے یا نہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کی مہلت ختم ہونے میں 8 گھنٹے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے۔ حکومت اور الیکشن کمیشن عدالتی فیصلے کو چیلنج کرنے کا اعلان کر چکے ہیں، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل بھی دائر نہ ہو سکی۔ حکومت اور الیکشن کمیشن نے عجلت میں الیکشن کرانے سے معذرت کر لی ہے۔ تو اسلام آباد میں آج بلدیاتی انتخابات ہوں گے یا نہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کی مہلت ختم ہونے میں 8 گھنٹے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے۔ حکومت اور الیکشن کمیشن عدالتی فیصلے کو چیلنج کرنے کا اعلان کر چکے ہیں، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل بھی دائر نہیں ہو سکی ہے۔ حکومت اور الیکشن کمیشن نے عجلت میں الیکشن کرانے سے معذرت کر لی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان خان، ان سے معلومات لیں گے۔ عثمان خان، آگاہ کیجئے۔ جی بالکل، آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہدایت دی تھی الیکشن کمیشن کو کہ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات جو ہے وہ اپنے بر وقت ہونے چاہیے، جس کے بعد الیکشن کمیشن میں ایک اہم ترین اجلاس ہوا تھا جس کی صدارت چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے کی تھی۔ الیکشن کمیشن کے ممبران بھی موجود تھے، جبکہ ڈی جی لا اور لا ونگ کے افسران بھی موجود تھے اور اس پر تفصیلی طور پر مشاورت ہوئی۔ ہمارے ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب ان کے پاس وقت کم ہے، اور کیونکہ آج کے دن کا کہا تھا کہ آج الیکشن کروائے جائیں، تو آج وہ نہ ہی پولنگ کے سامان کی ترسیل ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس حوالے سے جو ہے وہ عملے کو بر وقت پولنگ اسٹیشنوں پر پہنچایا جا سکتا ہے، جبکہ وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ وہ اس حوالے سے جو اسلام آباد کے تمام تر پولنگ اسٹیشنز ہیں ان کو سیکورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے اتنی جلدی میں۔ جبکہ الیکشن کمیشن نے یہ موقف اختیار کیا کہ ہم اس حوالے سے انٹرپٹیشن ایک اپیل دائر کریں گے، جس حوالے سے انہوں نے اٹارنی جنرل کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔ جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا عملہ بھی جو ہے ہائی کورٹ کے اندر موجود رہا 10 بجے کے قریب تک، مگر کسی کی جانب سے کوئی پٹیشن فائل نہیں کی۔ اب اسلام آباد کی عوام بھی اس کی کشمکش میں ہے کہ آیا کل اب بلدیاتی انتخابات ہوں گے یا نہیں، جبکہ الیکشن کمیشن نے یہ واضح کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا موقف ہے کہ جو عملہ ہے وہ اس وقت چھٹیوں پر ہے، کیونکہ زیادہ تر عملہ جو ہے وہ سرکاری ملازمین ہے، سرکاری اسکول کے اساتذہ ہے، اسکولوں میں چھٹیاں ہیں تو اساتذہ جو ہے وہ گھروں کو گئے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے لیے جو ہے وہ مشکلات ہے، اتنی جلد بازی میں جو ہے وہ الیکشن منعقد کروانا ان کے لیے جو ہے وہ مسائل کن ہوگا، کیونکہ نہ ہی پولنگ کے عملے کی ترسیل ہو چکی ہے اور نہ ہی اس حوالے سے جو ہے وہ جو میٹیریلز ہے وہ پولنگ اسٹیشنوں کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے موقف اختیار کیا ہے کہ ان کو وقت دیا جائے تاکہ وہ تمام تر چیزوں کو مکمل کر سکے، جبکہ الیکشن کمیشن نے اپنے موقف سے جو ہے وہ اٹارنی جنرل کو آگاہ کر دیا ہے۔ اٹارنی جنرل کی جانب سے آج ایک پٹیشن اپیل دائر کی جانی تھی جو کہ دائر نہیں کی جا سکی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو آرڈر تھا اور معزز عدالت نے جس طرح ہدایت کی تھی الیکشن کمیشن کو بر وقت انتخابات کروائے جائیں، اب دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوگا۔ آیا الیکشن کمیشن کل اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرے گی اٹارنی جنرل یا وفاقی حکومت کی جانب سے الیکشن کمیشن کو کیا کہا جائے گا اور الیکشن کمیشن اس حوالے سے کیا فیصلہ دے گی، اب یہ وقت بتائے گا۔ مگر چونکہ الیکشن جو تھے اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات جو تھے وہ شیڈول تھے اور وہ آج ہونا تھے، وفاقی حکومت نے اسلام آباد کی یونین کونسل میں اضافہ کر کے اس کو 125 کر دیا تھا، جس کے بعد قومی اسمبلی اور سینٹ سے یہ بل پاس ہوئی اور اس کو جو ہے وہ بل بنا دیا گیا تھا۔ اسلام آباد بلدیاتی ایکٹ ترمیمی بل تھا، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ اپیل کی الیکشن کمیشن نے، اور اب دیکھتا ہے کہ 8 گھنٹے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ شکریہ عثمان خان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ عدالت کے حکم کا احترام کرتے ہیں لیکن یہ قابل عمل نہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے آج اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ناممکن قرار دے دیا۔ کہتے ہیں 1000 پولنگ اسٹیشنز کو کم وقت میں سیکیورٹی دینا ممکن نہیں، اس کے علاوہ حلقہ بندی کے لیے بھی کم از کم 60 روز چاہیے۔ 24 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کرانے میں کم از کم 3 سے 4 ماہ لگیں گے۔ کا کہنا جو ہے وہ بالکل ہم ان کی عدالت کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن یہ کل الیکشن جو ہے یہ ممکن نہیں ہے۔ 1000 کے قریب پولنگ اسٹیشن ہے جس کو سیکورٹی فراہم کرنی ہے، پھر وہاں پہ جو ہے وہ الیکشن کا جو اپنا مٹیریل ہے وہ پہنچانا ہے، عملے کو پہنچانا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ 1000 پولنگ اسٹیشن پہ جو ہے وہ اسلام آباد پولیس کو جو ہے وہ تعینات کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ ہمیں اس کے لیے رینجرز اور ایف سی کو بلانے کی ضرورت تھی، اس میں کم از کم 3 سے 4 ماہ لگیں گے۔ عدالت
साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को नाकाबिले अमल करार दे दिया। कहते हैं कि इतनी जल्दी में इंतखाबात कराना नामुमकिन है। वो 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। देखो, ये असूली तौर पर तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को एक इंतहाई मुश्किल मरहले में दाखिल करवा दिया हाई कोर्ट ने आज। देखिए, सबसे पहले अहम बात यह कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो इमीडिएटली अटॉर्नी जनरल की मशावरत से उन्हें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरख्वास्त करनी पड़ेगी कि वक्त की कमी है और चंद घंटों में हम इतना इंतजाम नहीं कर सकते। लादादर की सूरत हाल है, पुलिस का पुलिस स्टेशन पहुंचना नामुमकिन नजर आ रहा है और 1000 पुलिस स्टेशन है और 1000 प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं और 13,000 का अमला है। तो उन सबको इकट्ठा करना और उससे सामान पहुँचाना हमारे लिए मुमकिन नहीं आएगा। तो हमें 1 हफ्ते की मोहलत दे दी जाए तो मुमकिन है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए उन्हें चंद रोज की मोहलत दे सकता है, क्योंकि इलेक्शन में पाकिस्तान एक आईनी इदारा है और इन इख्तियारात भी हाई कोर्ट के बराबरी हैं। तो इन हालात को देखते हुए मेरा अपना ख्याल यही है, नामपल्ले तजर्बे की रोशनी में मैं बताना चाहता हूँ कि ये इसके चंद रोज की मोहलत मिल जाएगी और इसके साथ साथ इलेक्शन पाकिस्तान जो है इंतखाबात करवा देगा। ये बड़ा फैसला बड़ा खुशाद आया है। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से लंदन में पार्टी कारकुनों और रहनुमाओं ने मुलाकात की है। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत आइंदा सियासी हिकमत अमली पर बातचीत हुई। पार्टी रहनुमा कामरान माइकल ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी मौजूअ गुफ्तगू रहा, जबकि इस मौके पर क्रिसमस और साल नौ का केक भी काटा गया। कामरान माइकल ने मुलाकात के बारे में और क्या बताया, ये बताएंगे हमारे नुमाइंदा अजमत अवान। जी अजमत। आज बिल्कुल कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा और जो वर्कर्स हैं उन्होंने आज मुलाकात की। इस वक्त मेरे साथ जो सेंटर कामरान माइकल साहब वो मौजूद हैं। हम उनसे आज की जो मीटिंग का अहवाल है वो जानते हैं। देखिए जी, सबसे पहले तो ये है कि आज बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है कायद मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब के साथ और उसमें तमाम वर्कर्स भी आए हैं, हमारी कम्युनिटी के लोग भी आए हैं। और आज सबसे बड़ी बात थी कि कायद मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब ने क्रिसमस और न्यू ईयर का केक भी काटा है और अपनी नई ख्वाहिशात का इजहार किया है और क्रिसमस पे तमाम पाकिस्तान की क्रिश्चियन कम्युनिटी को उन्होंने मुबारकबाद पेश की है, वो चाहे पाकिस्तान में है या दुनिया किसी भी ममालिक में रहती हैं। दूसरी बात ये थी कि आज बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू सियासी सूरत हाल पे भी हुई है, इसलिए मैं समझता हूँ बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से हमारा होमवर्क तो कम्प्लीट है। अब देखना ये है कि आज क्योंकि ये ऑर्डर जो है वो जजमेंट जो है वो आई है तो उस पर पार्टी ने पहले भी तैयारी कर रखी है। टिकटों की जो तरसील थी वो अमल में आ चुकी है। मियां साहब की जो पाकिस्तान आमद है बहुत जल्द है, मुतवक्को है और इसी ज़मन में पार्टी उहदेदारान से पार्टी के जो लोकल लीडरशिप है जो पाकिस्तान में काम कर रही है उनके साथ मशावरती अमल जारी सारी है और बहुत जल्द जो है वो हम अपने तमाम व्यूवर्स को और अपने पार्टी के मेंबर्स को और जो यहाँ सब वेट कर रहे हैं उन्हें बड़ी खुशखबरी देंगे। आज बिल्कुल कामरान माइकल साहब हमारे साथ मौजूद, उन्होंने बड़ा तफसीली आज जो नवाज शरीफ से मुलाकात के बारे में बताया। उनकी जानिब से कहा कि जो अदालत ने आज फैसला बल्दियाती इलेक्शन का करवाया तो उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं और हम इलेक्शन भरपूर तरीके से लड़ेंगे भी। और साथ उन्होंने ये बताया कि मियाँ साहब जल्द पाकिस्तान वापस भी आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान को ललकारने वालों को पूरी कुव्वत से जवाब मिलेगा। दहशतगर्द पाकिस्तान के दुश्मन हैं। पूरी कौम दहशतगर्दों के खिलाफ एक बयानिए पर मुत्तहिद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का पुरअज़्म इजलास हुआ। मुल्की मईशत और अमन व अमान का तफसील से जायज़ा लिया गया। इंटेलिजेंस इदारों ने अमन व अमान की सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने मुआशी हिकमत अमली और इक़दामात के बारे में ब्रीफिंग भी दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है। हिना रबानी खर ने अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से भी आगाह किया। पाकिस्तानी हुकाम ने गैर मुल्की सफ़ीरों और सफारतकारों को पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। IG इस्लामाबाद नासिर अकबर खान ने सिक्योरिटी सूरत हाल बारे आगाह किया। सेक्रेटरी खारजा और सेक्रेटरी दाखिला ने इजलास को ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी इंतजामात बहुत बेहतर हैं। गैर मुल्की शहरी आज़ादाना नकलो हरकत कर सकते हैं। आला हुकाम ने मुख्तलिफ सफ़ीरों के सवालों के जवाब दिए। इजलास को सेक्टर I-10 धमाके में तहकीकात की पेशरफ्त बारे भी आगाह किया गया। सिफारतकारों ने ब्रीफिंग को तसल्ली बख्श करार दिया। लाहौर में असातिज़ा का 5 रोज़ से जारी एहतजाज रंग ले आया। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के असातिज़ा के मुतालबात मंजूर कर लिए गए। नोटिफिकेशन कुछ देर में जारी किया जाएगा। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे वहीं मौजूद हमारे नुमाइंदा अब्दुल्ला मारूफ से। अब्दुल्ला मारूफ, कौन कौन से मुतालबात हैं तस्लीम किए गए हैं और कितनी देर में ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा?
जी, महकमा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के उस्ताद गुज़िश्ता 5 रोज़ से सड़कों पर थे और अपना मुतालबा लेके आए थे कि जिनमें उनको रेगुलाइजेशन किया जाए, उनका रेगुलर किया जाए। उनका एक ही मुतालबा था, उन्होंने ये अहद किया था और इस बात पे बज़िद थे कि जब तक हमारा मुतालबा पूरा नहीं होता हम ये धरना ख़त्म नहीं करेंगे। उस्ताज़ा की मेहनत, उस्ताज़ा का जो धरना है वो रंग ले आया है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और उस्ताज़ा के वफ़द के दरमियान मामला तय पा चुके हैं और अब जो है कुछ देर तक और जो बाकायदा तौर पर इनका रेगुलर करने का जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया जाएगा। अभी तक जो है जो मुजाहिरीन का जो वफ़द है वो वापस बाहर तो नहीं आया। उनके इत्तलात के मुताबिक कुछ ही देर बाद वो बाहर आएंगे, बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद ये जो धरना है ये ख़त्म करने का ऐलान करेंगे। जैसे ही उस्ताज़ा ने ये खबर सुनी कि उनका जो मुतालबात हैं रेगुलर करने का वो मान लिए गए हैं, उस्ताज़ा में एक खुशी की लहर दौड़ चुकी है। उनकी जानिब से जो तासरात जो है दीद के काबिल हैं। उनका कहना था कि हमने मेहनत की है, 5 रोज़ से सड़कों पर थे, बिलाखिर हुकूमत और उनकी हमारी बात आगे ले आई है। अब्दुल्ला मारूफ, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के 3 धड़ों को यकजा करने पर इत्तफाक हो गया है। ज़रा के मुताबिक MQM पाकिस्तान की क़यादत डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी करेंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी समेत 5 नए डिप्टी कन्वीनर मुकर्रर होंगे। कराची के बल्दियाती इंतखाबात से कबल धड़ों के इंज़माम का ऐलान मुतवक्की है। गवर्नर सिंध की क़यादत में आइंदा हफ्ते मुश्तरका इजलास होगा। फारूक सत्तार कहते हैं कि आफाक अहमद से भी राब्ता किया गया है। आजिज़ जमाली की रिपोर्ट इसी बारे में है। डॉक्टर फारूक सत्तार का शुमार MQM के सीनियर रहनुमाओं में होता है। साबिक डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं कि उन्हें क़यादत पर कोई इख्तलाफ नहीं। खुसूसी गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं कि MQM का मुत्तहद होना अब पूरी कौम की ज़रूरत बन चुकी है। तो मेरे ख्याल में ये सब का एक दूसरे से एक जगह यकजा होना और MQM में वापस जम हो जाना, ये इतनी बड़ी ख़बर है कि पूरे मुल्क में जो पढ़ा लिखा मिडिल क्लास का नौजवान है, जो तबका है, उससे एक एनर्जी और करंट मिलेगा और वो इस बात पर जो है वो इंतहाई खुशी महसूस करेगा कि साल 2023 में जो मुल्क में सियासी बहरान है, माशी बहरान है, तो कम से कम कराची को उस सियासी और माशी बहरान को हल करने के लिए एक तहरीक का आगाज़। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि सिर्फ 3 धड़े ही नहीं, दीगर धड़ों को इस इंजमाम का हिस्सा होना चाहिए। ये कौमी ज़रूरत बन गई है ना, तो इसमें जो इकाइयाँ आ सकती हैं मेरे ख्याल में उनको वेलकम किया जाना चाहिए और उसमें आफाक अहमद का भी मैं एक रोल देखता हूँ और मैं उन्हें भी वेलकम करूँगा अगर वो आएंगे तो। क्योंकि कम से कम उन्होंने इस्तकामत के साथ और यकसोई के साथ किसी एक एजेंडे पर जो है वो खड़े रहे, तो मैं उनकी भी बात करता हूँ। फारूक सत्तार ने कहा कि आइंदा इंतखाबात में एक मुनफरद MQM इंतखाबात में हिस्सा लेगी। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वक्कास से कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ताजरों के वफ्द ने मुलाकात की। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मोहम्मद तारिक यूसुफ ने वफ्द की क़यादत की। इस मुलाकात के दौरान कराची में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वक्कास का कहना था कि ताजर बरादरी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। कराची पाकिस्तान का माशी हब है, पुरअमन हालात ही माशी तरक्की के ज़ामिन है। कराची में कायम अमन अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों की काविशों और कुर्बानियों का मनहून मिन्नत है। ताजरों के वफ्द ने सिंध रेंजर्स की जानिब से किए गए हिफाजती इक़दामात को सराहा। मुल्क के 3 बड़े एयरपोर्ट्स आउटसोर्स किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत PIA से मुतालिक इजलास में अहम फैसले किए गए। कराची, इस्लामाबाद और लाहौर एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आउटसोर्सिंग शुरू करने की हिदायत की। इजलास में वर्ल्ड बैंक के ज़ेर इंतज़ाम IFC की मुआवनत हासिल करने की मंजूरी भी दी गई है। वर्ल्ड बैंक का ज़ेली इदारा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन कंसल्टेंसी के फ़राइज़ अंजाम देगा। PIA परवाज़ों पर अमले की सिगरेट नोशी का सख्त नोटिस ले लिया गया है। परवाज़ों के दौरान सिगरेट नोशी करने वाले अमले को 1 लाख रुपए जुर्माने का फैसला किया गया है। PIA इंतज़ामिया ने नो स्मोकिंग ऑन बोर्ड और जुर्माने का सर्कुलर भी जारी कर दिया है और सिगरेट नोशी की रिपोर्ट न करने वाले अहलकारों पर भी जुर्माना आयद होगा। तो ये बड़ा फैसला किया है। PIA परवाज़ों पर अमले की सिगरेट नोशी का सख्त नोटिस लिया गया है। 1 लाख रुपया जुर्माना किया जाएगा उन लोगों को अमले के जो कि सिगरेट पीते हुए पकड़े जाएंगे। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, PIA ने इस वजह से एक नोटिफिकेशन है वो जारी किया है। उस नोटिफिकेशन के मुताबिक वो अमले के अफराद जो कि दौरान ड्यूटी
स्मोकिंग करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला है वो किया गया है। और फैसला जो है वो यूरोपियन सिविलेशन अथॉरिटी साफा प्रोग्राम के तहत PIA तैयारी के इंस्पेक्शन के दौरान स्मोकिंग की इंकशाफ पर है वो किया गया था। और ये फैसला किया गया है कि प्रवासों पर सिगरेट नोशी करने वाले अमले को फीसद 1 लाख रुपये जुर्माना है वो किया जाएगा। और एयरलाइन इंतजामिया ने नो स्मोकिंग ऑन बोर्ड पॉलिसी के खिलाफवर्जी अमले को मुमकिन जुर्माने का सर्कुलर है वो जारी कर दिया है। और सर्कुलर के मुताबिक प्रवास पर तैनात दीगर अमले की जानिब से सिगरेट नोशी करने वाले के बारे में रिपोर्ट करना है वो जरूरी होगा, जबकि रिपोर्ट ना करने वाले अमले को भी 1 लाख रुपये फीसद जुर्माना आयत है वो किया जाएगा। और प्रवास पर तैनात अमला है वो नो स्मोकिंग ऑन बोर्ड पॉलिसी पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगा। और जो मुसाफिर दौरान प्रवास इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करेगा फौरी तौर पर 1 लाख रुपये जुर्माना है वो किया जाएगा। और सराय का ये कहना है ये फैसला इसलिए किया गया है कि गुज़श्ता चंद रोज कबल यूरोपियन जो सिविलेशन अथॉरिटी साफा है उनकी तरफ से ये तैयारी की जो इंस्पेक्शन की गई उस दौरान जो अमले को जो है वो ऑन बोर्ड जो स्मोकिंग करते देखा गया, स्मोकिंग करते देखा गया, तो उसके बाद ये फैसला किया गया। बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद। गैस की लोड शेडिंग के सताए आवाम के लिए अच्छी खबर, LPG की कीमत में 11 रुपये 59 पैसे फ़ी किलो की नुमायां कमी कर दी गई। 1 किलो LPG अब 204 रुपये 65 पैसे में मिलेगी। घरेलू सिलेंडर 2411 रुपये 43 पैसे में दस्तयाब होगा। वजारत ख़जाना ने माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल तरसीलात ज़र, बरामदात, बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी हुई है। माली ज़खायर नॉन टैक्स आमदनी रुपये की कदर में भी कमी रिकॉर्ड की गई है। FBR महसूलात में 16% इजाफा हुआ। जुलाई ta नवंबर तरसीलात ज़र 9.6% की कमी हुई। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जानिब से पहले 5 माह में 12 अरब डॉलर भेजे गए। बरामदात में 2% कमी और दरामदात में 16.2% की कमी रही। 5 माह में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 51.4% की कमी हुई। मुल्क के माली ज़खायर 11 अरब 49 करोड़ डॉलर से ज़ायद रहे। आटे की कीमत ने मुल्क की तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। तारीख में पहली बार 20 किलो आटे का थैला 2600 रुपये का हो गया। कराची में आटा 130 रुपये किलो फरोख्त किया जा रहा है। इदारा शुमारियात के मुताबिक कोयटा में आटा 240 रुपये महंगा हुआ और इसकी कीमत 2560 रुपये हो गई। पेशावर में आटे का थैला 2500 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। पंजाब और इस्लामाबाद में 20 किलो आटा 1295 रुपये में दस्तयाब है। और ख़बर है कि सोने की बढ़ती कीमत मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। इजाफे के बाद सोने की कीमत 1,84,000 रुपये की रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गई। सोने की फ़ी तोला कीमत में 1500 रुपये इजाफा हुआ है। आलमी मंडी में भी सोना 11 डॉलर महंगा हो गया है। और 2022 के आखिरी कारोबारी हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 226 रुपये 43 पैसे पर बंद हुआ। रवां साल में इंटरबैंक में डॉलर 47 रुपये 92 पैसे महंगा हुआ। एक साल में डॉलर 47 रुपये 92 पैसे महंगा होने से पाकिस्तानी रुपए में बैरूनी कर्जों के बोझ में 5,900 अरब रुपए का इजाफा हुआ। देखिए अशरफ खान की रिपोर्ट। साल 2022 में इंटरबैंक में डॉलर की रिपोर्ट, सियासी गैर यकीनी सूरत हाल, मुसलसल बैरूनी कर्जों की अदायगी और तरसीलात ज़र समेत बरामदात में कमी रुपए को ले डूबी। रवां साल के आखिरी कारोबारी रोज इंटरबैंक में डॉलर 226.43 रुपए पर बंद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 के इख्तिताम में इंटरबैंक में डॉलर 178 रुपए 51 पैसे पर बंद हुआ था। इसी साल रुपए के मुकाबले डॉलर 47 रुपए 92 पैसे महंगा हुआ। साल 2022 में 28 जुलाई को इंटरबैंक में डॉलर की बुलंद तरीन सतह 239.94 रही, जबकि 2 फरवरी को इंटरबैंक में डॉलर की कम तरीन सतह 174 रुपए 47 रही। डॉलर 47 रुपए 92 पैसे महंगा होने से पाकिस्तानी रुपए में बैरूनी कर्जों का बोझ 5,900 रुपए का इजाफा हो गया। ओपन एक्सचेंज मार्केट में करेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 के दौरान ओपन मार्केट में रुपए के मुकाबले में डॉलर 57.50 रुपए महंगा हुआ। 30 दिसंबर 2022 में ओपन मार्केट में डॉलर 235 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर की बुलंद सतह
सतह 255 रही, जबकि कम तरीन सतह 180 रुपए रही। एक साल में ओपन मार्केट में यूरो 67.50 रुपए महंगा हुआ। इसी दौरान ओपन मार्केट में यूरो 197 रुपए से बढ़कर 264.50 रुपए पर पहुंच गया। एक साल में ओपन मार्केट में बरतानवी पाउंड 65 रुपए महंगा हुआ। इसी दौरान बरतानवी पाउंड 235 रुपए से बढ़कर 300 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गया। एक साल में इमारती दरम 21 रुपए महंगा होकर 59 रुपए पर पहुंच गया। इसी दौरान सऊदी रियाल 19.10 रुपए महंगा होकर 65.90 रुपए पर पहुंच गया है। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों को वार्निंग के बाद गिराने का हुक्म दिया है। बसें ना खरीदने वाले निजी तालीमी इदारों को पहले वार्निंग, फिर स्कूल बिल्डिंग्स सील करने की पॉलिसी बनाने की हिदायत कर दी। लाहौर से मलिक अशरफ की रिपोर्ट। जस्टिस शाद करीम ने माहौलियाती आलूदगी समूह तदारक से मुतल्लिक केस की समाअत की। मेंबर माहौलियाती कमीशन हिना हफीजुल्लाह इसहाक, सैयद कमाल हैदर और डीजी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी समेत दीगर अफसरान पेश हुए। तालीमी इदारों की तातीलात में तोसी का नोटिफिकेशन पेश किया गया। जस्टिस शाद करीम ने डीजी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से कहा कि आपने स्मोक कंट्रोल करने के लिए तमाम मुतल्लिका महकमों की निगरानी करनी है। रूल्स बनाने के बाद आलूदगी की जाँच पड़ताल की ऐप बनाई जाए। मेंबर माहौलियाती कमीशन हिना हफीजुल्लाह इसहाक ने बताया कि ट्रैफिक जाम एक इशू बना हुआ है। अदालत ने सीटीओ को महकमा वासा के साथ मिलकर प्लान मुरतब करने की हिदायत करते हुए कहा कि ट्रैफिक रुकनी नहीं चाहिए। महकमा तालीम निजी तालीमी इदारों को बसों की खरीदारी के मुतालिक पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाए। ट्रैफिक के एमिशंस हैं वो हम कंट्रोल कर सकें। ट्रैफिक कंजेशन की वजह से जो वो धुआं छोड़ रही हैं गाड़ियाँ और हवा में ये माहौलियाती आलूदगी पैदा हो रही है, उस पर भी एक्शन लेने को कहा है। जस्टिस शाद करीम ने महकमा माहौलियात की कारकर्दगी पर इजहार नाराजगी किया और रिमार्क दिए कि अगर सब कुछ अदालत ने ही करना है तो महकमे का क्या काम है। अदालती हुक्म पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। मेंबर माहौलियाती कमीशन सैयद कमाल हैदर ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश की। इस हैजर्ड की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को मुश्किलात का सामना है, बीमारियाँ फैल रही हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए जो पहले ऑलरेडी कंप्रोमाइज्ड हैं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा ने बताया कि चाइना ने लाहौर में स्मोक कंट्रोल करने के लिए तावन पर रजामंदी जाहिर कर दी। पाकिस्तानी एम्बेसी बीजिंग ने फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया है। अदालत ने समाअत मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी करते हुए अदालती अहकामात पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। हज़रत बीबी पाक दामन रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ हो गया। ज़ायरीन और अक़ीदतमंद जौक दर जौक हाज़िरी देने आ रहे हैं। देखिए हसनैन औलख की रिपोर्ट। बीबी पाक दामन के उर्स के पहले रोज नमाज जुमा के बाद गुस्ल, चादर पोशी और गुलपाशी की तकरीब हुई और दुआ कराई गई। मैनेजर औकाफ बीबी पाक दामन अजहर फरीद भट्टी ने पुलिस ऑफिशियल्स के हमरा उर्स के इंतजामात का जायजा लिया। हमारी हालिया ये टेररिज्म की जो वेव है उसके हवाले से उनकी सिक्योरिटी को सबसे पहले हम इंश्योर कर रहे हैं। उर्स के 3 रोज बाद आज नमाज मगरब महफिल समा होगी। हफ्ते को झंडा जुलूस बाद आज नमाज इशा बरामद होगा, जबकि अतवार को रात 2 बजे इख्तितामी तकरीबात होंगी। मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी इख्तितामी दुआ कराएंगे। उर्स के तमाम इंतजामों इंसराम महकमा औकाफ व मजहबी अमूर पंजाब की जानिब से किए गए हैं, जबकि पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। साल 2022 में जराइम पेशा अफराद ने शहरियों की जिंदगी अजीरन किए रखी, तो दूसरी जानिब पुलिस ने भी जराइम पेशा अफराद के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की। सुरीली धुन और कानों में रस घोलती आवाज़। कराची का नौजवान मोची जिसने खुद सुर लगाने का हुनर सीखा। नौजवान गुलकार इकरामुल्लाह दुनिया मौसीकी में अपना नाम बनाने का ख्वाहिशमंद है। उर्दू और पश्तो में गाना गाने वाले गुलकार से मिलवा रही हैं नमरा रियासत। सलाहियत और टैलेंट किसी की मेरास नहीं होता। इसी तरह लांडी शेरपाओ कॉलोनी का नौजवान मोची भी खूबसूरत और सुरीली आवाज का मालिक है, जो इसे विरसे में नहीं मिली, ना इसने कोई इसकी बाकायदा तालीम हासिल की। इकरामुल्लाह अपनी दुकान पर जूतों की मरम्मत के दौरान अपनी सुरीली आवाज का जादू भी जगाता है। इसकी आवाज सुनकर लोग ठहर जाते हैं। कम उम्री में वालिदा के दुनिया से गुजर जाने के बाद इसने खुद गाना लिखा, धुन समेटी और पहली बार अपनी आवाज का जादू जगाया। नौजवान गुलकार इकरामुल्लाह उर्दू के अलावा पश्तो जबान में भी अपने सुर बिखेरता है। इकरामुल्लाह की मादरी जबान पश्तो है, लेकिन सुर बिखेरते हुए उर्दू की अदायगी में कोई फर्क नहीं। इकरामुल्लाह जैसे सुरीले गुलकार को दुनियाए मौसीकी का कोई जौहरी खूबसूरती से तराश कर हीरा बना सकता है। इकरामुल्लाह अपनी छोटी सी दुकान से निकलकर मुस्तकबिल में अपनी आवाज के जरिए मौसीकी का सितारा बनने के लिए एक मौके की तलाश में है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना। देखते रहिए 24।